Hey everyone, welcome to another episode of the Purple Patch podcast series. So today we have two guests with us. A really interesting conversation is going to take place. We have Kartik Dhawad. Am I saying it right? Yeah. Okay. So he's from the commerce background and he's preparing for CA. And Mr. Dhoot, he's currently pursuing his BTech from IIT Pune, Triple IT Pune, nice, in computer science. Triple IT. And he did his high school from science stream. साइंस वाले बहुत लोग हैं ना अपने साथ. Okay. So welcome guys. Hello. Hi. Hello. Hi. So how are you enjoying your lockdown? What's there to enjoy? Exactly. There's nothing to enjoy in lockdown. There's nothing to enjoy in You're bored lockdown. at home. So much to enjoy in lockdown यार. There's so much to enjoy in lockdown. ऐसे कैसा nothing to enjoy? That's already done. Introvert, extrovert. So actually I can't enjoy anything right now. At least ये last 10 days तो नहीं होगा मेरे से. Last 10 days to नहीं. Right. So you're giving your July attempt, yeah? हाँ अभी जुलाई वाला. हाँ. So you're writing for CPT or you're going to go for CPT है ना? Foundation ही ना? हाँ भाई उसको पहले CPT बोलते थे ना. हाँ वो अभी वो change हो गया वो कर. हाँ वो change हो गया right. So the overview of the podcast basically I just wanted to give it to you both was that maybe today we'll be talking about online and offline classes. Okay, and the difference between what do you feel what was better and worse, like the cons and pros of online and offline classes basically, and what would your preference be on the same. Secondly, what I want to speak to you about is that one of you has written the board exams, at least attempted them. Might be for Jay, just 1 or 2 exams got cut off, but rest he at least went and attempted them, right? But there existed a board exams for him. Whereas for Kartik, I guess there were you haven't attempted your 12th board, as far as I. Not technically, but center point. I made sure that we gave papers like before the boards were conducted. We had a prelim 3, so it was. Right. Teachers would mainly consider it as the boards or related to that. Okay. So yeah, but the kind of environment that is for boards and you go and sit and write your boards and everything, that hasn't happened, right? As far as I know. And then 12th. Oh, like I just want to ask you, what were the 12th results based on then? 12th results were basically they're taking aggregate of the last 3 years, like 10th, 11th, and 12th, and they're dividing it into the 30-30-40 ratio. So the total of the 10th the 10th के total का 30% लेंगे, 11th के total का 30% लेंगे, और जो 12th का main result है उसके से 40% लेंगे, और वो उसका जो total आएगा, that would be the final result. Okay, right. So how do you think is that beneficial, and how do you think that it has its own cons and its pros it might have? No, so what do you think? I don't think it's beneficial क्योंकि तुम बोर्ड्स के इससे ही जो 12th तक पुराना वाला जैसे होता था, तुम पेपर्स दो, तुम वही पेपर्स किससे तुम्हारा होगा. I think that was better क्योंकि उसमें फिर इंटरनल मार्किंग्स वगैरह के इसमें उतना कंफ्यूजन नहीं हो रहा था जितना अभी हो रहा है कि कौन से मार्क्स लेंगे, कौन सा ये करेंगे. क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग को स्कूल वालों ने मतलब कुछ ऐसा बताया नहीं था कि कौन से मार्क्स काउंट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे. सिर्फ हमको सिर्फ इतना बोले थे कि तुम्हारे पेपर्स है, तुमको देना है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. स्कूल वाले बताते हैं कौन से मार्क्स काउंट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे. ये मतलब एटलीस्ट कंसीडरिंग द कोविड सिचुएशन उनको थोड़ा एक क्लियर क्लैरिटी देनी चाहिए थी सिचुएशन की कि कैसे करना.
ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे स्कूल के जो नॉर्मल ऐसे पीरियोडिक्स वगैरह होते थे वो किसी ने भी प्रिपेयर करके दिया नहीं होगा, मतलब मेरे हिसाब से तो ये Right. लोगों ने किया होगा, बट जो जो एक ये रहता है ना कि जो मार्क्स काउंट कर रहे हैं और उसका जो ये होता है, जो माइंडसेट बनता है उसके से वो कुछ बना ही नहीं था। तो ऐसा था कि हाँ टेस्ट है, एक ही दिन है, ऐसा। राइट, मतलब बोर्ड वाला हमारा जो माहौल होना वो ऐसे चाहिए था वो 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 था नहीं नहीं। था, पहले कैसे वो नहीं था। बोर्ड बोर्ड सुन के जैसे ऐसे ही थर 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 होता था, हाँ लाइक हाँ वर्ड्स, हाँ बुक का है, इधर है, देता हूँ 2 मिनट रुक जा, आंसर भेज रहा हूँ। हाँ, राइट, अभी ऐसा। Jay, ओके, what about you? How do you think the lockdown has affected you personally in your professional life? Okay. So what happened is my boards, they were all over. I got the exams, but I was preparing for an exam called JEE. So what happened is uh, like I had the JEE dates, but suddenly this COVID came and the dates got on postponing. So basically for JEE you have a very vast syllabus and you need to cover, like you need almost a month for revision. And what happens is they give date 15 days prior to you and they want you to sit in the exam and give and write the exam. So basically that was very, that was very annoying. That And what happens is they gave a date and even they were not sure that whether they will be able to take the exam or not. So even they they kept on postponing that date. And that was so much stressful. We need to revise or we need to learn some new topics for the exam. So I was basically much stressed at that time, like कि मैं करूँ क्या, मैं पढ़ूँ या मैं क्या करूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है, कुछ नया नहीं सीख रहा था, मैं एक ही एक चीज को 10 बार पढ़ रहा हूँ एक तरीके से। राइट, That I was can like totally relate. I have given JEE as well. हाँ cool. हम भी Right. engineer ही है. So हाँ, we are on the same boat. I can totally relate with that. yes, just the streams are different. She is electrical Yeah, engineer, I think. electronics. There's a Yeah, big electronics. difference between electrical and electronics. You never say, you Right. never merge the two. Also can never know there is. Okay, I'm very sorry engineers are about very that. offensive like that. Yeah, You I gonna got say, it. I understood in the trailer, and I will never tease you again on that. So yeah. So Jay, but do you think अगर तेरे boards पहले अच्छे से, मतलब एक बार होता है ना कि boards proper हो जाते हैं, उसके बाद you start your JEE and everything, थोड़ा तुमको एक ये पता रहता है कि flow रहता है proper. So do you think your boards का clarity नहीं रहना has hampered your JEE का performance या फिर JEE की जो तुम्हारी तैयारी होती थी उसकी? See, what happens is JEE cannot be cracked after boards. You have to prepare with your boards as well. Like continuously, you need to prepare for boards plus the competitive one. But what happens is, like, for me, boards were, that were a temporary exam. But what happened is, like, we had a clear picture about the boards, that board will happen at that time, and they happened at that time. But what happened is, like, last 2-3 exam, I guess they got postponed, and they were basically about that physical education and the other subjects which we have. So I don't had much pressure about the boards, but I was much worried about this competitive thing, like what all you need to do for that. Okay, right. okay, So so you are. I guess Kartik would answer that better. Kartik, Kartik can answer that better. Kartik, tell me, that has the ambiguity of your boards affected तेरा CA का जो भी तैयारी है उसको? इनिशियली नो, okay, तब इनिशियली तो ऐसे ही लग रहा था ना कि बोर्ड्स वर टू बी हेल्ड इन मे एंड मोस्टली न्यूज उसी के इस पे चल रही थी कि हमारे Right. बोर्ड्स मे एंड वगैरह में होंगे, और सीए के आईसीए की तरफ से न्यूज आ गई थी कि वो जून एंड के इसमें लेंगे वो। सो और उसके इतने हमारे सीए के प्रेपरेशन की क्लासेस भी शुरू ही हो गए थे। सो और मोस्टली उसमें मैं मतलब जैसे नोटिस किया उसमें 12th और इसके काफी सारे सेम ही था, तो उतना कुछ ये ही नहीं हुआ, मतलब कंफ्यूजन वगैरह कुछ हुआ नहीं। और फिर बाद में जैसे जैसे वो और पोस्टपोन वगैरह करते गए, उसके वो वर्ड्स के बहुत ही फेक रूमर्स वगैरह सब वो इतना ज्यादा हो गया था कि वो समझ में ही नहीं आ रहा था किस पे करना क्या करना। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं ऐसे 12th के इस पे सिर्फ मतलब मैं कॉमर्स विद मैथ्स लिया था, और सिर्फ मैथ्स पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर रहा था, मैथ्स और इको,
क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मेरे को उतना कुछ हुआ नहीं था अच्छे से, तो इको और मैथ्स पे ज्यादा फोकस था। अकाउंट्स के तो डे टू डे प्रैक्टिस के तो हो ही जाता था, और बहुत अच्छे से करा भी रहते मतलब अकाउंट ट्यूशन वाले भी, तो उसमें मेरे को उतना कुछ लगा नहीं। बट फिर बाद में वो फिर जैसे जैसे टाइम आया, अप्रैल मई, उससे वो I know. Okay, The so most मतलब uncertain ऐसे thing मतलब is, CA is anyways very pressurizing. हाँ चाहिए वो हाँ चाहिए. मतलब आई वुडंट कॉल इट प्रेशराइजिंग, बट उसमें थोड़ा बहुत रेगुलरिटी लगती है, बहुत एक और एक कंसिस्टेंसी हाँ लगती है। exactly. बाकी तो अगर वो थोड़ी लूज हो गई तो फिर वो हाँ होता है वो। that is true. Jay, you were Jay, you were saying saying something. something. I'll add one thing. What happened is, like, before a week of the exam, students are there mass tweeting like, cancel the exams, cancel the exam. Even 2 days before the exam, we are not clear that we are going to write that exam or not. So, there is such mental pressure that what should I do? Should I tweet there? Should I support the movement? And initially, what happened is, in my earlier 2 exams, the students, they were tweeting in mass amount, and exams really got postponed because of that movement. And at the end, when the exam happened, like many of the students, they were saying before a week that, okay यार मैं तो नहीं पढ़ रहा, एग्जाम पक्का पोस्टपोन नहीं होने वाला है, इतने सारे केसेस आ रहे हैं, मैं तो नहीं पढ़ने वाला। एंड हाँ, हाँ उस तो चक्कर में काफी वो काफी, मतलब उसके से काफी कंफ्यूजन भी हो गया था, मतलब मेरे राइट, से बहुत लोगों ने बोला कि ऐसे एग्जाम्स अभी हो रहे, पोस्टपोन हो रहे, नहीं हो रहे। पेटिशंस की इसमें हमारे मैथ्स के ट्यूशन में मैथ्स से ज्यादा तो पेटिशन के फॉर्म घूम रहे थे। एग्जैक्टली। है ना, ये फॉर्म से ये होगा, ये फॉर्म से हाँ ये होगा, मतलब कितने तो एटलीस्ट 2-3 फॉर्म्स तो ऐसे ही आ गए होंगे। उन फॉर्म से कुछ फायदा हुआ या वो भी सिर्फ फेक रूमर्स ही निकले? एक फॉर्म तो मतलब मेरे फ्रेंड ने सबको भी बताया था कि एक फॉर्म तो है कि ये मैथ्स के जगह तुम ज्योग्राफी कन्वर्ट कर लो। तो उसमें वो फिर आई डोंट थिंक वैसा कुछ हुआ। हाँ वैसे ओके, कैंसिल करने वाली जो पिटिशन थे उससे बोल सकते कि हाँ हुआ, बट बाकी के जो उसके सब्सिक्वेंट फॉर्म्स डेवलप हो रहे थे कि मैथ्स को ज्योग्राफी में कर दो, फिर फिजिक्स फिजिक्स को पीई में कर दो, ये थोड़ा सा नहीं। पूरा था ना. I know होता है. And do you think कि अभी जैसे ये जो सब टाइम चल रहे थे and you see that you know people and government and everything of that sort, जब ये चीजें इतनी एम्बिगुअस हो जाती हैं, जब तुम लोगों को देखते हो नहीं पढ़ते हुए तुम्हारे साथ वालों को इस मेंटालिटी में कि यार पता नहीं एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा या पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, does that peer pressure get to you that then you also feel like you should study, you should not study, you should do what you don't know, and then ultimately you see your performance is getting hampered? Does that happen? Like have you तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ना, elaborate on that. तो मेरे हिसाब से तो मतलब अगर कोई मतलब जो अपने पीयर्स है उसके ऑनलाइन किस केस में अपन को कुछ समझा भी नहीं ना, वो पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे कैसा क्या हो रहा है, तो ऑफलाइन केस में तो अपन एक्चुअली थोड़ा एक आइडिया रहता है, क्योंकि इन वन वे अपन को पेपर्स आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं अरे कितने मार्क्स मिले, तो इसमें एक्चुअली अपन को थोड़ा आइडिया आता है कि आगे वाला कितना प्रिपेयर कर रहा है। ये वाले इसमें तो हार्डली कुछ लोगों का पता चला मतलब कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। सो पीयर प्रेशर सॉर्ट ऑफ इतना कुछ डेवलप हुआ नहीं, मतलब देयर वाज मेरे हिसाब से कोई कंपटीशन ही नहीं, मतलब जो रहती है ऑफलाइन क्लासेस के इसमें, तो मेरे को कुछ लगी ही नहीं वैसे। हाँ Okay, so Yeah, in तेरा my like case, हाँ, what happened is कि मेरे friends तो थे, क्योंकि I had attended 2 years of offline coaching, and what happened is like we used to match up time and we used to give the same test and then we used to discuss. But what happened is like जब एग्जाम की डेट ही सर्टेन नहीं है तो we started taking some breaks कि यार 10 दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद I will get back to my work. So what happened is in 10 days break we thought that we would relax, we'll chill out, we'll see some movies and that all stuff. बट उस टाइम पे भी ऐसा स्ट्रेस रहता था कि नहीं यार क्या पता वो पढ़ रहा होगा, उसने ब्रेक लिया नहीं लिया, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ या मैं मतलब चिल आउट कर रहा हूँ, तो इज दिस द राइट थिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो वो वाले स्ट्रेस में दैट 10 days भी यूं लगता था कि नहीं यार कुछ करा तो नहीं है, ना पढ़ाई हुई ना कुछ कर पाया मैं ज्यादा। तो इट वाज लाइक वैसा स्ट्रेस डेवलप होता जा रहा था उस टाइम पे। हाँ but You I think never ये तो know. normal day का ये pressure नॉर्मल है. है, नहीं नहीं, हाँ. एंड टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू स्टडी इन अ ग्रुप ना, वो एक
fear factor रहता ही है कि because मैं नहीं पढ़ रही हूँ, it's not Right. necessary सामने वाला इंसान पढ़ेगा नहीं. हाँ वही ना. काफी बार ऐसा भी होता होगा ना, मैं वो ऐसे बोलते हैं नहीं भाई मैंने तो कुछ मैंने पढ़ा तो नहीं, कुछ बट भी नहीं पढ़ा. Exactly. हाँ वो Exactly. तो ये हर एक के साथ होता है, ये हर ग्रुप में वैसा कोई ना कोई एक इंसान होता ही है. Okay. चतुर एवरीवेयर. ओके, चतुर एग्जिस्ट एवरीवेयर. Everywhere, in every stream. कैरेक्टर था वो हर जगह है. हर जगह है, हर स्ट्रीम में है. हर स्ट्रीम में है. दैट इज ट्रू. Which brings me to my next question. Do you think yeah. this lockdown has affected different streams differently? Because you guys are from different streams, right? Yes. How? Yes. Elaborate on that. तो साइंस मेनली जय जैसे साइंस वाले इसमें जो प्रैक्टिकल्स वगैरह रहते हैं उनको तो कुछ करने ही नहीं मिला. जो मतलब Exactly. 11th 12th के जो मेन प्रैक्टिकल्स रहते हैं जिसपे पूरा फाउंडेशन बनता है कि ऐसे ऐसे पूरा करना पड़ता है, मतलब उनको तो बहुत ही कम एक्सेस मिला, नहीं के बराबर बोल सकते हैं. ओके. एंड कॉमर्स वालों को कॉमर्स वालों के इसमें तो एक पेपर और पेन ही चाहिए लिखने के लिए, तो भी तो आई डोंट थिंक उसको प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है. और अगर तुम तो कॉमर्स के पे भी तुमको अगर ऑप्शन है कि तुम फिजिकल एजुकेशन वाले लो, घर के 10 चक्कर लगा लो. Jay, what about you? पर अगर जैसे कि मान ले कि कॉम्पिटिटिव्स के लिए अगर हम पूछें कि यू नो हाउ हैज दैट अफेक्टेड, क्योंकि कॉम्पिटिटिव्स अलग हैं, उसके कॉम्पिटिटिव्स अलग हैं. तो अभी सीए लिखते दैट इज आल्सो आई कंसीडर इट एज अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव डिग्री इन इटसेल्फ, बिकॉज वो हर एग्जाम कॉम्पिटिटिव है उसका. ऐसा नहीं है कि तुमने जैसे सेमेस्टर के हिसाब से लोग एग्जाम्स देते हैं. इंजीनियरिंग में अगर तुम घुस गए तो तुम्हारा कैसा इंजीनियरिंग का सेमेस्टर वाइज पेपर होता है कि पेपर वापस ले लो. तो वो एक कॉलेज वाला माहौल अलग होता है, एक सीए वाला माहौल अलग होता है, राइट? तुम्हारा तो उस पे क्या असर आया है? तो मतलब बेसिकली कॉमर्स में ऐसा रहता है कि दे 11th 12th में दे प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स एंड देन दे स्टार्ट फॉर द सीए प्रिपरेशन. बट साइंस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द 11th. लाइक हमको ये एग्जाम देना है तो यू हैव टू कवर 11th एज वेल एज 12th. तो हमको दोनों चीजें करनी होती है. एंड आफ्टर यू कंप्लीट 11th यू हैव मोर प्रेशर दैट यू हैव टू टेक 12th एज वेल एज 11th. सो मतलब मेरे को जो लगता है कि अभी जो बच्चे फेस कर रहे होंगे, व्हाट आर दे फेसिंग इज लाइक आई यूज्ड टू गो 5 hours कोचिंग एवरी अल्टरनेट डे, एंड यू नो यू कांट सिट 5 hours in front of the laptop and you can attend continuous online classes. वो बहुत ही बुरा हो जाता होगा. And you know you need that sitting hours because like JEE advanced जो exam है, you have to give 6 hours, like 3 hours there is a paper in morning and 3 hours in the evening. So what happens is you need that 6 hours sitting, and that 6 hours they have to be very productive. You have to concentrate and you have to that even if 1 minute if you lose, then you will mess up with whole your paper. So मतलब मेरे को लगता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन और जो उनकी सिटिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई. एंड मोर ओवर जो मुझे लगता है कि अगर हम टीचर से कभी डाउट पूछ रहे हैं तो व्हाट मतलब मेरी एक टीचर से ही बात हुई थी, व्हाट आर दे सेइंग इज कि रात को 1-1 बजे बच्चे फोटो खींच के मतलब दे आर आस्किंग मी डाउट्स. एंड लाइक व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर कोचिंग व्हाट हैपेंड इज अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो मेरे से पहले ये पूछता तुमने उसको कहाँ तक अप्रोच किया. ये वाला जो मेथोडोलॉजी है आई थिंक दैट इससे आपको ज्यादा सीखने को मिलता है, रादर कि आप एक सोल्यूशन पोस्ट कर दो एंड ही इज एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज रॉन्ग इन योर सोल्यूशन. So he first used to ask me कि आपकी approach क्या है, and that one-to-one connection with the teacher, I feel that is less in online rather than offline. And I guess that is making every stream better, na? I mean, it's not only about science की one-to-one connection से तुम्हारा कुछ अच्छा हो रहा है. One-to-one connection से शायद I guess everybody in the world understands better कि अगर आप सामने किसी इंसान से बैठ के पढ़ रहे हो और एक आप एक स्क्रीन के पीछे किसी इंसान से बैठ के पढ़ रहे हो तो वो अपने आप, and I feel कि it's not like you don't take it seriously. I feel both the parties have equal effect of the virtual thing that they do not take it seriously. थोड़ा relaxation दोनों साइड पे आ जाता है कि ठीक है यार अब ऑनलाइन ही तो लेना है, कैसे भी आप बैठ जाओगे, कैसे भी आप कर लोगे. आपको क्लास जाना होता है, आपकी प्री प्रिपरेशन कितनी होती है कि मुझे रेडी होना है, मुझे जाना है, मुझे I have to be active, I have to sleep and wake up on time and everything. But if given an option that you can't speak and that nobody is going to listen to you and you know you can hide your face, imagine people are sleeping, people are going outside, people are doing a lot of other things that they shouldn't be doing while they are taking a class. So because मैंने तो अभी यही देखा है
fine. आजकल I'm तो Do online people actually do that? But yeah, Kids actually do that कि कैमरा ऑफ कर दिया और बच्चे सो रहे हैं. मतलब कैमरा हाँ. ऑन रखना जरूरी होता है क्या? स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने वैसा ही किया है पूरा ऑलमोस्ट पूरा साल भर. स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस मैंने ऑलमोस्ट वैसा ही किया है. Exactly, I'm doing that in my मैम को college. हमारे इसमें ऐसा रहता है, मैम को पूछता अटेंडेंस के इसमें हमको कमेंट सेक्शन में बस एक पी डालना रहता था. वो भी मतलब हर एक पीरियड का टाइम सेट था कि ये पीरियड में मैम पहले वाले इसमें पूछती है, ये पीरियड में आखिरी वाले इसमें पूछती है. डाल दो. आपको कब उठना है वो आपको पता है, आपको कब सोना है वो आपको पता है. हाँ. So how has this affected your preparation in competitive? अभी मुझे ये जानना है. मतलब ये वाले इससे मेरे कॉम्पिटिटिव के इस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे जो स्कूल के टाइमिंग्स रहते थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोचिंग के वो टाइमिंग्स रहते थे वो काफी अलग रहते थे. और कॉम्पिटिटिव के इसमें मेरे को तो मतलब प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजे जाते थे, तो आई हैव नो ऑप्शन बट मेरे को जग के देखना ही पड़ता था. मतलब मैं कैसे नहीं कर सकता कि हाँ मतलब पी डाल दिया और सो गया हो. मतलब कॉम्पिटिटिव में तो ऐसा नहीं कर सकता था, बट स्कूल के इसमें हो गया. बट एक वो आई फील कि एक चीज होती है ना कि मतलब आई एम फॉरगेटिंग माय क्वेश्चन एक्चुअली दैट यू नो. मैं वापस पूछती हूँ. अंजलि यू कैन टेक अप. Jay, elaborate on what. Okay, so I feel कि seriousness as well as your punctuality is affected while you are preparing for competitiveness. So competitive exams they require both. मतलब you need punctuality as well as both the skills you need. So what happens is like if you have a 2-hour lecture, like what I do right now is that if the class is going online, it is definitely on record, and I know that if I miss any part of my lecture, I can do that from the recording part. But what I see is that if I have a 2-hour lecture and I attend 1 hour from that, like I attend the live session for 1 hour, and the rest 1 hour I think that कि मैं recording से देख लूंगा और वो सब मैं वैसे manage कर लूंगा चीज. तो मेरे को क्या लगता था कि मैंने जो 1 घंटा देखा उसके बाद मैंने 3 घंटे का गैप लिया, फिर मैंने दूसरा 1 घंटा देखा. तो जो पहले 1 घंटे का जो लिंक था मेरा वो बिल्कुल टूट गया, बिकॉज सुबह मैं दूसरे माइंडसेट से बैठा हूँ और शाम को मैं कुछ और सोचते हुए वो लेक्चर देख रहा हूँ. तो वो दोनों चीज को लिंक करना, और ऑफलाइन में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था. अगर नींद भी आ रही है तो भाई क्लास में तो बैठना ही पड़ेगा, और टीचर आपको यू हैव अ वॉच फ्रॉम द टीचर. तो आपको वो चीज आई थिंक कि यहाँ पे ऑफलाइन इज ऑब्वियसली बेटर देन ऑनलाइन. एंड डर भी लगता है क्लास में, यार टीचर डांट देगा, नहीं मैं नहीं कर सकता. ऑफलाइन तो 50 लोग सामने बेइज्जती हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है. एंड एग्जैक्टली टीचर डू दिस लाइक मेरे को मतलब अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ना क्लास में, तो दे डोंट रिजॉल्व माय डाउट्स. दे आर लाइक कि तुम पढ़ते तो हो नहीं, मैं तुम्हें डाउट बता के क्या करूंगा. दे आर लाइक दैट. सो उससे यूं लगता था कि नहीं यार पढ़ना है, क्लास में बैठ के कुछ तो करेंगे 2 घंटे बैठ के. आई थिंक ये टीचर्स का ही मतलब सिर्फ तुम ध्यान नहीं दे रहे, और फिर ऐसा होना नहीं चाहिए ना कि सिर्फ तुम ध्यान नहीं दे रहे तो तुम्हारे डाउट ही अटेंड नहीं करेंगे. ऐसा ये तो गलत हो गया ना फिर. I'll tell you one thing about whatever I figured out about these things is that negative motivation is also a kind of motivation. No? Right, exactly. Then that way कि आपको ऐसा इग्नोर करेंगे कि अगर आप उसको फिर लेते हो कि हाँ ठीक है इग्नोर करे तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो आपका ही नुकसान है. But sometimes people take it in the way that Jay takes it in, that I don't want to be ignored like that. So I want to study ताकि मैं कम से कम अपने doubts clear कर पाऊँ जो मुझे clear करने हैं. People who actually want to crack exams and give competitives, उनका यही attitude और aptitude होना चाहिए. I feel कि वो जाएं और पूछें, उन्हें ignore होना नहीं अच्छा लगना चाहिए ना. That is how teachers also figure out कि नहीं यार ये बच्चा पढ़ रहा है. दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आई थी जो मुझे पूछनी थी is that how difficult has that transition been for you people कि तुम लोग 10th तक या 9th तक मान लो 9th 10th तक तो तुम लोग स्कूल जा ही रहे थे ना. 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड से कोई तुमको बोलेगा घर बैठना है और अब virtually classes attend करनी है and all of that. How did that play in your head? Because today if you tell me कि मुझे एक virtual online session attend करना है या फिर मुझे एक virtually बैठकर पूरा एक सर्टिफिकेट कोर्स करना है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है वो चीज को लेना, बिकॉज मेरी तो पूरी एजुकेशन ही ऑफलाइन हुई. मतलब 11 तक तो ऐसे भी हमारा पूरा ऑफलाइन ही था ना. मतलब फिजिकली क्लासेस जा रहे थे, पूरा टाइम टेबल एक सेट हो गया था. तो ऑनलाइन के इसमें वो थोड़ा सा
इसी लगता है बहुत वो, कि मतलब तुम ऐसे ऑनलाइन की इसमें तुम बैठने का ट्रांजिशन की इसमें वो बहुत डिफिकल्ट जाता है वो पढ़ने में, कि वो पूरा एक अटेंशन अपन को एक 4x4 के बॉक्स में रखना है वो। इट्स तुम कितनी भी बड़ी स्क्रीन रख दो, तुम 42 इंच का फ्लैट स्क्रीन टीवी पे भी तुम अगर कर लोगे ना, तुमको एक टाइम बाद वो हेडेक होगा ही, तुमको प्रॉब्लम हाँ, होगी। ऐसा आंखें लगेगा खराब थोड़ा होगी वो टाइम बाद अलग। ऐसा होगा कि सर घूमने लगता है उसमें से। दैट्स व्हाट आई सेड ना, Right. आंखें But खराब होगी वो you know, अलग। आंखें हाँ, खराब भी चारों होंगी वो। चश्मिश है यहाँ पे। हाउ डू यू थिंक मेरे को चश्मा लगा अभी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वही तो। All four of I us heard. being the chashmish here, I thought I should take up that point. True that. Like, Jen, right. what do you think? How did that play for you? That you have to sit at home. I think the atmosphere, like atmosphere effect, atmosphere in the sense कि अगर I'm going to a class, what happens is if the teacher is teaching and say I'm sleeping, I'm physically present but I'm mentally not present, and you know my partner is suddenly answering a question, then I feel that कि यार वो पढ़ रहा है, मैं तो यहाँ पे कुछ मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, in the sense मैं बैठा हूँ केवल, and I'm thinking some other things. सो उससे मेरे को लगता था कि नहीं, अब मेरे को इस चीज को मतलब आई थिंक आई नीड टू अटेंड दैट क्लास, मेरे को अब थोड़ा देखना है उसमें। और अभी घर में क्या होता है कि अगर मैं लैपटॉप के सामने बैठा भी हूँ तो पीछे घर में क्या चल रहा है, आई मीन अगर कोई गेस्ट आ गया, सो आई हैव माय अटेंशन ओवर देयर एंड देयर इज नो वन कि वो मुझे बोले कि, क्योंकि टीचर को भी नहीं पता है कि मेरे घर के पीछे क्या चल रहा है एंड व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द लैपटॉप। Right. सो उस चीज में यू नो इवन इफ लाइक इफ यू आर, आप इतने ज्यादा सिंसियर हैं कि यू कैन फोकस ऑन दैट थिंग। सो मतलब इवेंचुअली मेरा वो ट्रांजिशन मेरे को थोड़ा लगा डिफिकल्ट कि मैं क्लास में अच्छे से ज्यादा पढ़ पाता था रादर कि मैं अभी लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ उस चीज को। सो एटमॉस्फेयर हाँ. काफी इफेक्ट करता है योर स्टडीज। Right. अच्छा, but क्लासरूम अगर के इससे वो थोड़ा एक मोटिवेशन भी मिलता है ना, कि नहीं अपन को पढ़ना है, वी आर इन अ क्लासरूम, और तब वो एक माइंडसेट राइट। रहता है अपना। तो ये घर हाँ. पे क्या है, अपन घर पे तो है थोड़ा सा, मतलब स्टार्टिंग में उतना नहीं था, बट फिर ग्रेजुअली जैसे वो टाइम जाते गया, वो वैसा ही माइंडसेट बन गया था काफी लोगों का, भी ऐसे ही घर पे ही Right. है, कुछ भी कर सकते हैं। Okay. अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है that तुम लोगों को ज्यादा इफेक्टिवनेस कहाँ से मिलती थी? लाइक तुम लोग जो ऑफलाइन क्लासेस करते थे तुम लोग ज्यादा इफेक्टिव थे, तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तब तुम लोग ज्यादा इफेक्टिव रहे हो, या ये अगर लाइक आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट फॉर मी कि किस चीज से तुमको लगा है कि ज्यादा इफेक्टिवनेस आती है एंड ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है तुम्हारा? इज इट ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन. ऑफलाइन ऑफलाइन मतलब जैसे जय ने अभी बोला ना कि वो एक सॉर्ट ऑफ टीचर के साथ ऐसी 1-to-1 कनेक्शन आता है, तो वो कनेक्शन वो तो फॉर्म होता ही है, प्लस अपन को वो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है तो बहुत अफेक्ट करता है अपन को, कि अपन क्लासरूम में है तो अपन को वैसा जैसी टीचर बोलती है वैसा करना है, कुछ नया करा रहे तो अपना उस पर अटेंशन रहता है, क्योंकि पता है कि अपन स्लैक ऑफ कर दिए, टीचर आके पीछे से आके टपली मारे। हाँ, वो हो चुका है बहुत बार। वो है. हो चुका है बहुत अच्छा, बार। अब अगर ये बात की जाए that Jay being a science student, I'm sorry Ranjali, I cut you off there. I'm really sorry about that. But Jay, you being a science student and you being a commerce student, what are these skills that you people had to develop, or what are these qualities that you had to imbibe in yourself to actually like take up the online classes? How did you people have to like increase your attention? क्या क्या करना पड़ा तुम लोगों को ये इस चीज में ढलने के लिए कि यार अब ऐसे ही पढ़ना है? तो What did you वेरी do फर्स्ट exactly to थिंग, make up your mind for this? ओके सो सबसे पहले आई थिंक कि उठना टाइम पे और सोना टाइम पे, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज क्लास अगर 8 बजे है तो मैं 7:55 पे उठ के क्लास अटेंड कर रहा हूँ। So that's हाँ. not a way that you are attending class, because if you are attending a class you have to prior, like मैं मेरा breakfast भी पहले करूँ उससे, I'll do all my that, I have to freshen up and then I have to sit in class. What happens is I'm getting up at 7:55 and then I'm in front of laptop again for 2 hours. Then for the first half an hour I have no connections that what is going in the class, हाँ, you know. क्योंकि So जो ढलते हैं. हाँ, मैं जस्ट उठाई हूँ तो मैं तुरंत तो कॉन्सेंट्रेट कभी नहीं कर पाऊंगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस। सो मैंने मतलब इनिशियली मैंने ये स्किल डेवलप की कि मैं वैसे करूँगा, आई मीन
कि I have to be Forming punctual. a Then routine another thing basically. is, yeah, another thing is laziness. When you constantly like you go see the laptop for 3 hours, you become lazy. Like अजीब सा लगता है कि दिमाग में यार बहुत भारी सा हो गया, हमने बहुत कुछ ज्यादा हेवी काम कर लिया and I can't do anything, like I can't do anything else. सो उसके लिए मैंने क्या किया कि आई रिक्वेस्टेड माई टीचर कि आप आफ्टर 1 आवर हमें 10 मिनट्स के ब्रेक दीजिए. तो उसमें यू गो एंड वॉक अराउंड, यू गो लाइक यू गो आफ्टर योर विंडो एंड यू टेक सम फ्रेश एयर एंड देन उसके बाद इफ यू अगेन अटेंड दैट 1 आवर सो दैट्स नॉट सो मच प्रेशर. सो ये चीज मतलब इन दोनों चीज को मैंने इम्प्लीमेंट किया आफ्टर अ स्विच फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन. Okay. Okay, तो what ऑनलाइन about में तुम लोगों ने प्रेशर ज्यादा फील किया है क्या ऑफ बीइंग अटेंटिव रादर देन इन ऑफलाइन क्लासेस? एक्चुअली Sorry, I ऑफलाइन didn't. क्लास में आई थिंक ज्यादा अटेंशन लगता था, और उसमें अटेंशन स्पैन की भी बहुत ही मतलब ऑफलाइन क्लास में कैसे हम लोग जब 11th में थे हमारे तो क्लासेस ऐसा होता था कि हमारे से दिन के 5 क्लासेस होते थे, वो भी एक एक घंटे के. तो हमको उतना वो 1 घंटे का हमको जो आदत हो गई थी, और हमारा अटेंशन स्पैन भी उस टाइम की इस पे ऐसा पूरा डेवलप हो गया था. तो उस पे फिर वो ध्यान से तुम पढ़ भी सकते थे, और तुमको तुम्हारा ध्यान भी रहता था हर चीज पे क्या हो रहा है, और फिर यू वर अटेंटिव, मतलब जो नॉर्मल राइट. स्टूडेंट एक रहना चाहिए अच्छे से. प्लस वो बंक करते रहते थे और हाँ, क्योंकि देख मेरे को इतना ही पता है दैट यू नो व्हेन आई यूज्ड टू अटेंड ऑफलाइन क्लासेस भी जब मैंने अटेंड करी हैं तो मेरा अटेंशन क्लास में रहता था. अगर 1 घंटे क्लास है तो मेरा 20 मिनट का अटेंशन तो लॉस होगा ही होगा. राइट. समवेयर और द अदर यू distractions हैव वगैरह दैट वो होते कैपेसिटी ही कि आप है. इतने हाँ ही टाइम कंसंट्रेट कर सकते हो. नहीं तो होता, मेरा मतलब वो कितना भी करके तुमसे एक एक किस तो एक एक घंटा कंटिन्यूअसली नहीं होता, वो हाँ नहीं हो बहुत पाता. पेशेंस लगता है उसके लिए. Do you think you have been facing some health issues कि मतलब किसी का नंबर बड़ा बड़ा हो तो बता दो, या किसी को मतलब ऐसा लगा कि यार यू नो हेडेक्स और ये सब चीजें जो ज्यादा बढ़ी हैं उसकी वजह से क्या अफेक्ट हुआ है तुम लोगों पे? यही हो गया ना, यही हाँ नंबर बढ़ गया. नंबर बढ़ गया. Oh God. क्योंकि मैंने देखा है लाइक पीपल कांट sit for so long hours, उनको बैक पेन आ रहा है इस एज में because they have to sit at one place and they have to sit तो भी straight ऐसे and स्टार्टिंग में जब हुए थे मेरे को भी काफी प्रॉब्लम हुए थे, मतलब लोअर बैक को बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे मेरे को. तो मॉम डैड ने कुछ सजेशंस दिए होंगे ना. ऐसा होता है ना कि घर में नहीं अगर आप इस तरीके से बैठ बैठ के काम कर रहे हो जरा सजेशंस एक्चुअली ऐसे को मैं पहले काफी ऐसे मतलब एथलेटिक स्पोर्ट्स खेलता था, तो मेरे को एक्चुअली पता था कि कौन सी बॉडी का पेन हुआ तो क्या करना चाहिए, मेरे को पहले से पता था. मेरे को किसी के किसी बोलने की उतनी जरूरत नहीं लगती, मतलब कुछ अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो फिर किसी और को कंसल्ट करता था. ऐसे मतलब वैसे नॉर्मली ऐसी बैक पेन हो रहा है, थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लिए थोड़ा, उसमें फिर नॉर्मली हो जाता था. राइट. जय देखो आई फील मेरे को एक ही चीज लगती थी कि अगर मैं 2 घंटे लैपटॉप के सामने बैठा हूँ तो आई वाज लाइक कि मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया आज, तो इसके बाद आई कांट डू एनीथिंग. फायरनेस सो Starting कैसे करेगा? नहीं, इससे तो मैंने वो एक पॉइंट सॉर्ट ऑफ एक शेड्यूल में से बना दिया था कि ऐसे बोर नहीं होना चाहिए. तो आई मेड इट अ पॉइंट कि या तो जैसे लॉकडाउन अभी बहुत था तो उसके इससे मैं फुटबॉल खेलता था मेरे डॉग के साथ. तो फिर बाद में फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड गोइंग, जैसे धीरे धीरे खुल रहा था लॉकडाउन उसके इससे फिर आई स्टार्टेड साइकिलिंग. फिर वो साइकिलिंग हुआ, फिर उससे एक दो फ्रेंड्स और साथ में ज्वाइन हुए, तो फिर सॉर्ट ऑफ ऐसे मतलब बीच में ऐसा एक आ गया था कि ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स एवरेज दिन का हो ही रहा था, मतलब टोटल. राइट. फिर ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रेस फीलिंग भी नहीं है, और ऐसे एकदम कूल लगता था ऐसे. हाँ जय यू वर सेइंग समथिंग. या सो मैं वही कह रहा था कि मतलब मेरे को इनिशियली इतना लॉन्ग सिटिंग आवर्स इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन वो आई फील कि मतलब वो मैं नहीं करता था कभी भी शुरू में. एंड मतलब उससे मुझे ऐसा लगता था कि आई एम गेटिंग मच हेडेक एंड आई फेल्ट लाइक कि नहीं यार और नहीं हो सकता. आई यूजुअली क्विटेड एट 1.5 आवर कि नहीं है बस, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता इसमें. रादर ऑफलाइन में ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू सिट फॉर 4 आवर्स इन अ वे लाइक विदाउट गेटिंग अप. तो इस चीज में आई मीन आई हैव डेवलप्ड अ क्वालिटी नाउ कि आई एम एबल टू सिट अराउंड 4 आवर्स 5 आवर्स नाउ.
राइट बट जैसे जो टायरनेस ऑनलाइन की है और जो टायरनेस ऑफलाइन की है दे आर डिफरेंट राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग Yes. Right, correct. they come from different areas that ऑफलाइन में जब आपकी टायरनेस है तो आपको इसलिए कि चलो आप जाके आ गए आप 1 घंटे सो गए और रिवाइव हो गया है ना ऑफलाइन की तो टायरनेस हो इट्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल. ये ऑनलाइन की तो मेंटल प्लस वो आईज का स्ट्रेन वो ही बहुत ही है. राइट तो which one do you prefer like you know as a student आपको क्या लगता है कि ये वाली टायरनेस बेटर थी इसको ओवरकम किया जा सकता था बट ये वाली है जिसको हम ज्यादा टाइम लग रहा है एंड दैट इज यू नो अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस आल्सो इन अ नेगेटिव वे which आई one do I you थिंक think offline is ऑनलाइन की always तो ज्यादा better. अफेक्ट कर रहा है. मतलब ऑनलाइन की तो टार्डीनेस वगैरह वो ज्यादा अफेक्ट कर रही है क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो जो ऑफलाइन के से तुम्हारी वो फिजिकल टार्डीनेस रहती है और वो तुम्हारी वो थकान रहती है वो तुम थोड़ा एक एक डेढ़ हफ्ता दो यू बिकम अकस्टम टू इट. तो यू वुड एक्चुअली डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. तो ये वाले इसमें भी ऑनलाइन के इसमें तुम ये नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अकस्टम नहीं होते हो तुम होते हो बट फिर उसका कॉस्ट जो रहता है वो बहुत ही हाई रहता है. मतलब आई पेन होता है हेडेक्स होते हैं वो तो सॉर्ट ऑफ एक रेगुलर बन जाता है. किसी ऐसे like you know would you like to quote an example of any person who has you know taken the online classes and has faced serious medical issues जो कि उनको नहीं थे पहले पर अब उनको क्योंकि ऑनलाइन अटेंड करना पड़ा तो किसी को चश्मा नहीं था उसको Maybe चश्मा आ something. गया या किसी ने मतलब किसी को बाकी क्या बोलते हैं हेडेक वगैरह के या माइग्रेन के इश्यूज नहीं थे उनके वो इश्यूज Not just physical health we're talking about, we're also talking about the mental health. we have to mental health क्योंकि इन्हीं सब चीजों की वजह से बिकॉज यू डोंट इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द क्लासरूम राइट राइट क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में कुछ भी हो एटलीस्ट बाजू में जो बैठा था उससे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी. हाँ So do you इसमें तो think ऑनलाइन exactly? So do you think at some point, whatever be the pandemic anxiety issues that we have been facing in the youth as of now, do you think that this level has risen up? the anxiety level, right? Exactly, yeah. Skyrocket. Obviously, that's And right. how has the pandemic affected your mental health personally? See, if you're not comfortable answering that, I'm not forcing you guys. And mental health case पे more not more of anxiety but the actually before the lockdown वगैरह के पहले मेरे को बहुत आदत थी कि मैं बहुत लोगों से बात कर लेता था. मतलब मेरी सेंटर बोर्ड में कोई ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं था बट तो भी ऑलमोस्ट पूरी स्कूल मेरी फ्रेंड बन गई थी. ऐसा सिनारियो आ गया था. बट फिर वो पैंडेमिक के बाद से ऐसा हो गया कि हाँ इटली में गिने चुने लोगों से बात करता हूँ. आई कैन लिटरली काउंट देम ऑन फिंगर्स. तो उससे मतलब ऐसे मेंटल हेल्थ अभी आई डोंट थिंक उतना कुछ फर्क पड़ा बट आई एम मोर मतलब उसके से मेरा शिफ्ट हो गया पूरा. मतलब थिंकिंग ही पूरी चेंज हो गई है. राइट सो I feel कि मतलब mentally तो I think every age group and everyone is affected. But you know what, we don't think that that's a mental issue. We are like कि नहीं यार ये तो ठीक है सबके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी हो रहा है. You're not like you don't say it like you have a mental issue in that way because India में what I feel is maximum people feel कि अगर कोई आपको mental issue है then you know he is mad. They term that guy that he is mad. Yeah, That's so they don't want to take it in that way कि यार हमको कोई mental issue है. So I feel mentally हाँ बोल continue. So I feel mentally तो सब एज ग्रुप इफेक्ट हुए हैं ड्यू टू दिस लॉकडाउन कि घर में बैठ के you can't always you know for almost a year we are sitting in our home. So I feel कि mentally तो सबको कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ ही. That is true. Also हम लोग ना इतने क्या बोलते हैं we aren't that educated about mental health that we really see the symptoms on them. कि there are people who would just you know be like tense on small things. But हम लोग कैसे लेते हैं हाँ ठीक है यार इसका नेचर में है कि वो छोटी चीजों की चिंता लेता है. पर हम लोग कभी उस चीज को एक मेडिकल टर्म नहीं देते हैं that you know maybe these are the symptoms of anxiety that the person is facing and you know so इसके लिए उनको कुछ ना कुछ लेना चाहिए. That you know there should be a treatment for this or maybe there should be I mean they should seek help for this.
हम लोग कभी उन्हें ये चीज सजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या हम कभी उनसे इसके बारे में बात भी नहीं कर पाते हैं खुल के। तो आई गेस यही तुम लोगों के साथ भी होगा कि तुम लोगों ने पापा को जाके, मम्मी को जाके बोला हो, या किसी से बात करने की कोशिश करी अपने फ्रेंड्स में कि यार आजकल हमें चिंता होती है कि आगे क्या होगा, कि आई डोंट नो, आई फील लाइक आई एम स्कैर्ड एंड कंफ्यूज्ड एंड ऑल ऑफ दैट एट वन प्लेस. But was scared or confused are the symptoms of anxiety, are the symptoms of other mental health issues. इस चीज पे कोई concentrate नहीं कर पाता because they aren't as much aware as much they should be. And because people don't talk about it. Yeah, people don't talk about it. People don't like there to are very talk about it, desperate basically. ways It's to not talk about it. exactly. तो I think Interest का एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें. आई फील कि डिप्रेशन तो ऐसा वर्ड है कि किसी से सुन लिया है तो यू आर लाइक कि नहीं नहीं यार अब इससे तो दूर ही रहना है, नहीं इससे बात नहीं करूंगा मैं. यू फील कि हमारे अंदर ऐसी चीज इनकलकेट हो गई है कि कुछ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव वर्ड्स अगर हमें पता चलता है कि वो फेस कर रहे हैं तो यू अवॉइड दैट पीपल कि नहीं यार मेरे को इससे बात नहीं करनी है. बट राइट. सो आई मीन जो मेंटल हेल्थ की बात कर ही रहे हैं, यू फील कि ऑलरेडी लॉकडाउन की लाइफ मंडेन थी एंड ऑनलाइन क्लासेस के प्रेशर की वजह से और ज्यादा तुम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, एंड किस तरीके से इस चीज को मे बी अवॉइड किया जा सकता था और तुम अवॉइड नहीं कर पाए, या तुम्हें और किसी चीज के बारे में अवेयरनेस मिलनी चाहिए थी टू टैकल दिस एंड तुम लोग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया उस चीज पे. नहीं एक्चुअली लॉन्ग माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के इससे बोल रहा हूँ कि मतलब जो ये ऑनलाइन क्लासेस के इससे जो हो रहा था कि जो बहुत लोगों को ऐसी टेंशन वगैरह हो रही थी, वो स्कूल लाइफ के इससे इतना स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, आई एक्चुअली डिडंट फील एनीथिंग. मतलब कुछ ऐसे मतलब काफी लोग थे कि उनको बहुत ही ऐसा लग रहा था कि अभी ये भी है, ये इतना ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. मैं स्टार्टिंग से ऐसी मतलब जब लगा था तब भी से ऐसी माइंडसेट लगा दिया था कि अभी है अभी करो, चुप ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास, तुम करो अभी करो. तो मेरे को उतनी भी प्रॉब्लम नहीं हुई. बस वो जो ट्रांजिशन ऑफलाइन से ऑनलाइन वाले में थोड़ा टाइम लगा कस्टम होने के लिए कि उतना टाइम स्क्रीन के सामने बैठो और फिर वो पूरा वो छोटे से इस पर तुम फोकस हो, वो वाले इसको थोड़ा लगा. बाकी इतना स्ट्रेस कि ओ माय गॉड इतना ये भी करना है वो भी करना है, वो नॉर्मली लगा. मतलब तुम अगर तुम 12th स्टैंडर्ड में हो और तुम ऑफलाइन में भी कर रहे हो तो भी तुमको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको ऐसा फील होगा कि अपन को ये भी करना है वो भी करना है. सो सॉर्ट ऑफ था कि वो सब करना ही पड़ेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. Jay, what about you? जय. तो मतलब व्हाट आई फील इज मुझे जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस जिस चीज का होता था कि मेरा पीयर ग्रुप क्या कर रहा है. एक्चुअली आई यूज्ड टू गेट स्ट्रेस्ड आउट कि मैं क्या उतना कर पा रहा हूँ जितना मेरा पीयर ग्रुप कर रहा है. क्योंकि ऑफलाइन में व्हाट हैपेंड इज कि ठीक है हम लोग रोज डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर गिविंग रेगुलरली टेस्ट एंड ऑल, हमें पता चलता था कि यार वो इतना आगे कर रहा है मेरे से या वो मेरे से इतना आगे बढ़ चुका है. मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस ऑनलाइन में आके यही हुआ कि मैं उतना कि मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. एंड अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मैं उनसे ज्यादा कर रहा हूँ या आई एम डूइंग इक्वल इन टू दैट. सो मेरे साथ जो स्ट्रेस था वो था कि आई एम नॉट एबल टू गेट अबाउट माई पीयर्स कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. राइट. सो दैट वाज. बट ये प्रेशर तो सिर्फ ऑनलाइन में रहते हुए नहीं आया ना. आई मीन ये प्रेशर तो जब तू ऑफलाइन भी होता तो तुझे आ सकता था. आई फील दैट वे. मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि लॉकडाउन में मैंने ये चीजें देखी है लोगों के साथ होते हुए, दैट एवरी स्मॉल प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग, आई मीन स्मॉल एज इन कि छोटा मोटा भी कोई इशू अगर है या किसी से कोई प्रॉब्लम या झगड़ा या ऐसा कुछ भी अगर आता है दिमाग में ना, वो भी ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग. क्योंकि आपके पास टाइम होता है ना, बट पूरे टाइम घर में हूँ तो आप किसी से ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हो एज सच. वो एक जो पर्सनल टच होता है वो तो मिस हो ही रहा है. राइट. तो पढ़ाई का प्रेशर भी वैसा ही है कि अगर आपको ये लग रहा है कि यार मतलब मुझे नहीं करने का मन भी कर रहा है एक तरीके से, मुझे चीजें अब ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है बजाय कि जब मैं क्लास ले रहा था जा रहा था तब के, तो वो एक चीज होती है ना कि आपके दिमाग में वो इश्यूज बढ़ते रहते हैं एंड वो चीजें कभी कभी ज्यादा प्रेशर दे देती है जितना कि उन्होंने नहीं, उन चीजों पे जितना प्रेशर नहीं होना चाहिए था उतना भी आ जाता है.
तो that's what I'm thinking, that's what I'm asking that तुम लोग के साथ वैसा हुआ क्या? नहीं, नहीं, जय, that something that you shouldn't be pressurizing on, that something that shouldn't exert pressure on you or give you that much of pressure is also like now appearing as a pressurizing. नहीं ना? देखो एक्चुअली ऐसे वो प्रेशराइज करना कोई छोटी चीज के ऊपर, माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट इट इज बुलशिट। कोई सेंस नहीं है छोटी सी बात पे इतना सोच के कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, वो ऐसा सोच रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, वो ये कर रहा होगा। I know. ऑनेस्ट फिलोसॉफी, अगर वो सही में अगर तुम्हारा कोई अच्छा क्लोज वन होगा वो तुमसे सॉर्ट कर लेगा, तुमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो खैर वो that is a social issue that we talking about, मतलब वो तो तब है जब फ्रेंड्स में कुछ ये हो रहा है, राइट? बट अगर जैसे लॉकडाउन के इस पे भी मतलब झगड़े हुए, ऐसा नहीं कि मेरे नहीं हुए या कुछ, मेरे हुए झगड़े, बट उसपे ऐसा एक कम्युनिकेशन की बात आती है। तो बहुत लोगों को लग रहा था कि लॉकडाउन के इससे कम्युनिकेशन का वो उतना हुआ नहीं, बट आई थिंक अगर सही में कुछ कम्युनिकेट करना है या तुमको कुछ करना है अच्छे से, तुम सीधा उठा के फोन कर दो ना, फोन पे बात होनी ही है। तुम्हारे वो लॉकडाउन के बैरियर टूटना ही है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो अभी पूरा साल भर चलते रहेगा। देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू नीड टू गेट अकस्टम्ड टू एंड यू नीड टू फाइंड अ वे अराउंड इट सो दैट योर लाइफ इज टेंशन फ्री। राइट, Exactly. Acha, let's move to a lighter topic. What do you guys miss about the school? About going to Yeah. school? चूल Cool, exactly सेंटर everything. पॉइंट की इसमें आके हमने जो कांड किए हैं वो कभी नहीं कर सकता, मतलब नॉट इन माय लाइफ एवर अगेन। मतलब लिटरली 11th में ऐसा एक टाइम आ गया था, हम लोग फर्स्ट पीरियड अटेंड करते थे, वो फर्स्ट 1 घंटा अटेंड करते थे, उसके बाद हम लिटरली बैग उठा के हम क्लास के बाहर गए हैं, वो पूरा दिन क्लास में नहीं आए हैं। और इसमें हमारी प्रेजेंटी भी लगी है, बोले मैम वो वॉशरूम गए हैं, बैग रखी है इधर, आ रहे हो। और टीचर्स को हवा भी नहीं लगती थी। आई सीरियसली रिमेम्बर वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, तो वो बहुत ही मतलब ये हो गया था, मतलब बेस्ट इंसिडेंट था अभी तक का। सो मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग नवंबर की बात होगी, हम लोग ये बंक मार रहे थे, मैथ्स पीरियड था हमारा, और हमारी मैथ्स टीचर ऐसी थी कि जो कोई भी ऐसी 1 मिनट भी लेट हुआ हर दिन उनका नाम लिख के रख देती थी, उनको पनिश करती थी। उसके हम जिस दिन बंक मार रहे थे उसके एक दिन पहले ही मेरा और मेरे फ्रेंड का नाम लिस्ट में आ गया था। और हम लोग जिस दिन बंक मार रहे थे उसी दिन मैम ने डिसाइड किया कि इनको लेके जाऊंगी मैं प्रिंसिपल के पास। और गलती से हुआ ऐसा कि हम जिस टाइम पे बंक कर रहे थे और मैम का पीरियड जो था वो कोलाइड हो गया, सेम ही पीरियड हो गया वो। Okay. तो लिस्ट में बाकी लोग का भी नाम था, वो गए, और हमारे क्लास वाले मतलब इतने टॉप लेवल लोग प्रिंसिपल के सामने बोल के आए कि मैम ये दोनों एब्सेंट है, आज आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग बंक मार रहे थे और फिर हम पकड़े गए, हमको लेके आए इधर प्रिंसिपल मैम के पास। मैम बोलती बट यू टू वर एब्सेंट। हम भी सोच रहे हैं क्या होता अभी। Similar case उसका- मेरे साथ हुआ था। I remember हम लोग भी जब 11th में थे ना, I was in all girls college. So हमारा फर्स्ट फ्लोर पे क्लास था, there was a physics का लैब, बीच में एक केबिन जैसा था, एंड उसके अंदर से there was इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब। ठीक है, तो हम लोग वो केबिन के अंदर गए, हमने डोर से झांक के देखा पीरियड किसका है, एंड वी वर लाइक आज मूड नहीं हो रहा, भागो यहाँ से। हम लोग वैसा बंक कर चुके हैं। आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग एक बार कैसे गए थे लास्ट ईयर, मतलब 2019 फेब, नहीं हाँ 2020 फेब वगैरह का कुछ कोई टाइम था। उस टाइम की जो 12th थी हमारे सीनियर वाली बैच, उनका ये प्रैक्टिकल चल रहे थे, तो और 12th 11th 12th वाले वैसे भी सब 2 व्हीलर से आते थे। ये प्रैक्टिकल वाले ये ऊपर प्रैक्टिकल दे रहे थे, उनका ऐसा था कि प्रैक्टिकल दो जाओ। हमको मालूम पड़ी ये चीज, बैक पैक किया हमने, 2 व्हीलर, मतलब मेरे फ्रेंड की 2 व्हीलर लेके आता था, वो 2 व्हीलर पे बैठे पूरे स्कूल के सामने से निकले हम, स्कूल के बाहर
स्कूल के मतलब ऐसे थर्ड वगैरह उसका पीरियड चल रहा होगा, ऐसे 11-12 बजे की बात होगी, वहां से स्कूल के बाहर निकले हो मतलब, और सेंटर पॉइंट का कैसे स्लोप है एकदम ऐसे बड़ा ऊंचा, वहां से पूरा ऊपर गए, पूरा निकल गए स्कूल से, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। और सर वगैरह भी खड़े थे, वो फुटबॉल के सर खड़े थे, मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो बोले जाओ बेटा जाओ। So Jay, now that you're in college, तुम लोगों को कोई फेस्ट हुआ है online? Because there are like colleges organizing online fests and everything these days. हुआ क्या? Yeah, we had an event right now, like hackathon, but matlab, it was fun. Everything was fun over the laptop only. But matlab, हुआ क्या, we were enjoying, but जो मजा offline का है, events are basically made Yes, for that's offline right. things Exactly. only. तुम Exactly. ऑनलाइन Even इवेंट कैसे ले सकते हो मतलब? even if it's a technical event ki matlab you have to code on laptop and then you have to submit the things, but जितना मजा उसको ऑफलाइन में आता है, क्योंकि इफ यू आर डूइंग थिंग्स इन ऑफलाइन यू हैव मेनी साइड इफेक्ट्स, से यू हैव सम म्यूजिकल नाइट, सम टाइम you have some dance night, so that all things and that all clubs, I would say, because in college you हाँ, have clubs for हाँ, different things. So हाँ. that club participation is zero in these online. Like it happens, they match up with all of them and they prepare a dance and they do that stuff. But that would be much better if we do offline. तो Right. ऑफलाइन की तो तो कई ऐसी बार मजा लगता है आती है ना कि करने में, कि ऐसे तुम पूरा ऑर्गेनाइज, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजर वाली फील आती है, वो Right, ये exactly. कर हाँ, रहे हैं अपन, और अपन को पूरा कोऑर्डिनेट करना है, उसके फिर जो right. प्रॉब्लम होते हैं उस पर चिड़चिड़ करना, बोले यार सारे में ऑर्गेनाइजर तुम कैसे कर रहे हो ये, वो अलग आते हैं उसमें वो। I हम लोग know. को I तो mean, That uh, हाँ, स्किल वो जो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं तुम वो लोगों का अफेक्ट करता है ना जब हाँ, ऑफलाइन की चीजें करते हो. हम लोग की ये वाले इवेंट्स जो भी हुए, मतलब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, हमारा फेयरवेल ऑनलाइन हुआ, उस पे भी हम लोग हमारा हाँ, हमारा फेयरवेल ही that नहीं is हुआ, another thing. I was हमारा still फेयरवेल glad नहीं to हुआ, मेरा remember. हमारा कॉन्वोकेशन नहीं हुआ. ग्रेजुएट कॉन्वोकेशन नहीं मेरा हुआ। मेरा एमबीए का कॉन्वोकेशन नहीं हुआ, डिग्री घर पे आई है मेरे. आई वाज लाइक व्हाट. हेलो मेरा बेटा, एमबीए का हैप्पी कॉन्वोकेशन बर्थडे। हुआ, बट कॉन्वोकेशन हुआ, बट दैट वाज ऑल ऑनलाइन। right. उनको तो हमारे जो फंक्शंस हुए थे इंडिपेंडेंस डे वगैरह के, इसमें हमको तो गूगल ड्राइव पे उनने अपलोड किया, बोले देखते बैठो, हाँ, बोले ये लो, ओके ओके हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ओके बाय। थोड़ा है वो तेरा. था। तू कुछ बोल रहा मैंने था. एक्चुअली स्कूल लाइफ तो मेरी पूरी अच्छे से निकली बाय गॉड्स ग्रेस, की कोविड तब तक नहीं आया था, बट इवेंचुअली जो कॉलेज लाइफ है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर फॉर बीटेक, दे आर लाइक यू हैव टू लिटरली चिल आउट, यू हैव टू डू नथिंग इन दैट, एग्जैक्टली। व्हाट इफ, एंड इन द थर्ड फोर्थ ईयर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्लेसमेंट्स, बट मतलब अभी जो ऐसा फील होता है कि यार पूरा मतलब 11th 12th में अच्छे से पढ़े, अभी कॉलेज में आ गए, तो अब ऐसा लगता है कि यार अब तो थोड़ा बाहर घूमे, इन द सेंस कि यू नीड टू मतलब कुछ बाहर जाके एंजॉय करे, ऐसा वैसे अभी हाँ. तो लग रहा प्रॉपर है कॉलेज कि लाइफ, वैसे वो कॉलेज बडीज वाली ट्रिप, ऐसा कुछ ऐसे राइट कहीं राइट जाना। एग्जैक्टली. एंड कॉलेज लाइफ इज वेरी ऑसम. अगर मेरे को ऑनलाइन में ऐसा फील हो गया है, तो ऑफलाइन में जाके हाउ वुड दैट, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस सोच के ही ऐसा लगता है कि यार जल्दी से जल्दी अब कॉलेज खुले. तेरा So तो हो ही मतलब जाना चाहिए शुरू एनीवेज बिकॉज योर कॉलेज इज इन पुणे. या पुणे में तो सारे तभी शुरू ही हाँ. हो गया थोड़े टाइम से, जय के मजे। Yes. पार्टी करेगा। मैंने तो सुना because I am also from Pune na, and I used to talk to him. I have always said this to him that as soon as the call, like Pune is such a nice city that you should anyways go and live and बहुत आराम से तुम chill कर एटलीस्ट स्पेंड योर सकते हो स्टूडेंट अपने लाइफ इन पुणे, हाँ. एटलीस्ट हाँ स्पेंड योर स्टूडेंट मतलब लाइफ इन पुणे, मेरे भी बाकी फिर वो बात की बात है। मेरे भी कजिन भी एक्चुअली पुणे में ही रहते हैं, वो ऐसी बहुत ही मतलब कभी बात होती तो बहुत बताते रहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा है वैसा है, आजा कभी, बोलता आप डॉक्टर हो, आता हूँ 1.5 2 साल बाद। The best thing about Pune is कि the मतलब जो वहाँ का मौसम है, it's always like rainy, windy. So when I talk to seniors, they are like कि the best thing about our college is what is the weather going on, because every time you have some rainy around thing, and that's very good.
Okay. Okay, guys. So that was it from our side. Yes. Do you want to say anything, both of you? Nope. So मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन इज ऑब्वियसली बेटर देन ऑनलाइन, बट यू नो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ इन सच अ वे दैट यू हैव टू डू थिंग्स इन ऑनलाइन. सो डोंट सीक फॉर थिंग्स लाइक कि यार ऐसा होता तो वैसा हो जाता. थिंक अबाउट द प्रेजेंट. जो मैं कर रहा हूँ उसको अच्छे से करूँ. इट्स ऑल अबाउट लाइक दैट कि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में ही डील करना है, वैसे ही हमें सिचुएशन को देखना है. That is true. Nice. Actually, यार तुम लोगों से अगर तुम लोगों की एज वाले सीखेंगे तो बेटर सीखेंगे, पता है. वरना if I say it to someone, or if any elder person says it to people of your age, it will be like Exactly. preaching, more like preaching. But if when you say it to each other, it's more like कि हाँ यार चल कर लेते हैं. Helpful You know? advice. हाँ Friendly advice. friend, हाँ एक वो वैसा advice होती है. Okay, so let's end it up here then. Thank you for coming on such a short notice, taking out your time. Thank you for this opportunity. Yes, exactly. We loved having you here. Right. Yeah, it was actually nice having you. Exactly. Hmm. Okay, Sure. so for our viewers sitting at home, stay safe, and stay tuned. We'll be back with more such podcast content. You guys know what to do. Like, share, comment, and subscribe. We'll be on YouTube as well soon. Yeah, soon. Okay.